Hello everyone, welcome for this session. So today we are going to revise whole lecture microbes, frame and foam. Okay, so in this lecture we are going to see the points. Okay, point wise. Maybe if you have any doubt, it will be clear in this lecture. Okay, so before starting the lecture, let's take a quick revision of last video. In last video, we have gone through about the nitrogen fixation. Okay, nitrogen fixation is one of the important process in our ecosystem. Okay, I told you that why it is important. How does the microbes? Okay, do only microbes are helpful for nitrogen fixation? Okay, most of the nitrogen fixation is done by the microbes. Okay, and other sources are blue green algae as well as lightning also is the best source of nitrogen fixation. Okay, nitrogen plants cannot get the direct nitrogen, so it needs to fix it. Okay, so into usable form. So who fix it into the usable form? By bacteria such as a rhizobium. Okay, some of the green blue algae. Okay, lightning also convert that nitrogen into nitrogenous compounds, and that nitrogenous compounds we call them usable form, and that usable form that absorbed by the plants, and afterwards it is transferred to one living creatures to another living creatures. Okay, so that we learned in our last video. In this video we are going to start right from beginning. Okay, there will be two different videos, and that videos will be on a revision session. Okay, so you can consider the other revision session first. Okay, in this video we are going to learn about microbes, what kind of microbes are there, and the useful, how they are useful in our daily life. Okay, so this is your revision session. Okay, so let's begin the session with the microbes. Okay, what are the microbes? Okay, which organisms we call them microbes? Okay, microorganisms. Okay, in the beginning I told you this word is made up of two different words. Actually, this is a compound word. Compound word means what? When the two different words we join together, we convert into compound words. Microorganisms. Okay, organisms means living creatures. And what is meant by micro? Micro means tiny, very small, which we cannot see with our naked eyes. That is called microbes. Okay, or microorganisms. Okay, now the presence of microorganisms. I told you microorganisms are present everywhere. Each and every, just like we define as a air. Air is present everywhere. So we can consider as the microbes also. Microbes are present on everywhere. Okay. See, even they are present inside the body of human beings or any other animals. Okay, they are present on the surface of the earth. They are present on the things wherever it is. Okay, but if you need to categorize those microbes are categorized into two different parts. First of all, first one is that useful microbes. Second, we consider as a okay, useful microbes and harmful microbes. Now, useful microbes and harmful microbes, let's begin with that. What are the microbes? Microbes are categorized into different parts. First, just like bacteria, fungi, protozoa, okay, and some kind of algae. Okay, viruses also are microbes, but why virus is categorized differently other than this? Because whenever the microbes live or survive virus needs cells to multiply or to survive. It needs a specific type of host, we call them cell. Okay, on which he can survive. Okay, and live there. Okay, and for reproduction also it is there. Now we are facing about the coronavirus. It is a type of virus only. COVID-19. It is 19 COVID. It belongs to the family of that virus, and 19 because it is invented or it is germinated in 2019. So COVID-19. That's why the name is given to him. Okay. So that virus also needs. Scientists were saying that the surviving time on the surface is different. Okay, just like on steel it can survive for 3 hours.
Okay, so means maximum if you will not get any kind of cell to multiply or to survive. Suppose the virus is present on this pen, coronavirus is present on this pen. No one is touching this pen and this pen is here for a week. The virus will be automatically destroyed. Why it is automatically destroyed? Because virus need any kind of cell to survive. But this is a non-living thing, he will not get the cell. But if you touch it within 2 to 3 days, okay, suppose the affected person hold this pen and kept here. I came after 2 days back and I hold this pen. Okay, afterwards the germs will be, or that my virus will be on my hand, and when it enters in my body through any medium, okay, whether touching my eyes, putting the hands in nose or mouth, okay, so on face, it enters in my body and start multiplying. Okay, if it is remain on that place only, okay, automatically it will destroy. Okay, so virus needs cells to survive. Okay, now let's go through the useful microbes. How microbes are useful for us? How we categorize the microbes? Okay, see, microbes. If we see that we cannot avoid microbes. In whole lectures, I told the same thing I told you. We cannot avoid microbes. Okay, we are not saying that we should destroy all microbes. Okay, we cannot destroy also. Okay, the same story is I wanted to mention that. It is regarding corona only. Okay, how does a small tiny creature affect on the atmosphere? Okay, on our ecosystem, on our plant. Okay, so एक छोटी सी स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको बताऊंगा हिंदी में. Okay, it is related to again China only. Okay, मैंने आपको चाइना के बारे में कुछ स्टोरी बताई थी इससे पहले. Okay, लास्ट लेसन में फाइबर टू फैब्रिक में कैसा फाइबर से मेड हुआ था और किस तरीके से चाइनीज ने सिल्क सबसे प्रीशियस माना जाता था उस वक्त में, जब सिल्क का इन्वेंशन हुआ था, जब सिल्क इंट्रोड्यूस हुआ था वर्ल्ड को, थ्रू चाइना से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था. सो कितना इम्पोर्टेंट था उस वक्त सिल्क. ओके, सो ये नजर आता था कि उस वक्त के राजा महाराजा सिर्फ और सिर्फ सिल्क क्लोथ्स यूज करते थे, उसके अलावा किसी को परमिशन भी नहीं थी, क्योंकि उतना एक्सपेंसिव था, प्रेशियस था कि नॉर्मल पीपल कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता था. Okay, so let's go through the China. 1950s, 40s, 50s और 60s की बात है. चाइना पहले से एक कम्युनिस्ट कंट्री. ओके, सो चाइना में क्या हुआ था कि जब फसल होती थी, चाइना की पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है. ओके, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि एक लिविंग क्रिएचर अगर हमारे वहां से गायब हो गए, हमारे एक लिविंग क्रिएचर हमारे इकोसिस्टम से हम लोगों ने उसको हटा दिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ओके, क्या क्या इफेक्ट करेगा? अभी यहाँ पे सिर्फ एक चिड़िया के बारे में स्टोरी, सिर्फ एक जो चिड़िया होती है वो चिड़िया के बारे में स्टोरी है. सो एक चिड़िया ने चाइनीज को कितना बदल दिया, चाइना के फूड कल्चर को कितना बदल दिया. अभी हम लोग हमेशा बोलते हैं कि चाइनीज क्यों खाते हैं. ओके, चाइनीज हर एनिमल क्यों खाते हैं. ओके, वो खाते हैं चूहे, कुत्ते, बिल्ली, हर लिविंग क्रिएचर चाइनीज लोग खाते हैं. ओके, वहां से एंट से लेके एलिफेंट तक हर चीज, इवन दो स्नेक्स, टॉर्टोइज, ओके, मेंढक, हर, मैं कहूंगा कि हर लिविंग क्रिएचर चाइनीज लोग खाते हैं. अच्छा, अब ये भी नहीं कि पहले से उनका कल्चर ऐसा है. पहले उनका कल्चर ऐसा नहीं था. चाइनीज लोग पहले ये सब सारी चीजें नहीं खाते थे. 400, 500, 600 साल पहले, इवन 200-300 साल पहले भी नहीं खाते थे. तो ये 60-70 ईयर्स में या 100 ईयर्स में ऐसा क्या हो गया उनके साथ में कि वो लोग इतना वायलेंट हो गए खाने के लिए. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाइनीज हर लिविंग क्रिएचर, कॉकरोच से लेके हर आपको जो भी लिविंग थिंग दिखेगी चाइनीज लोग खाते हैं. ओके, सो ये हुआ कैसे? तो ये स्टोरी है 1950s की. ओके, 40s, 50s, 60s में. उस वक्त क्या होता था, ये चिड़िया जो होती थी, ओके, चिड़ियों का अमाउंट चाइना में बहुत ज़्यादा था.
तो लोगों की फसल खा जाते थे चिड़िया। तो क्या होता था कि वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में क्या होता था कि जो राशन जो है वो मिलता था फार्मर्स को। बहुत ज़्यादा चिड़िया खा जाती थी, चिड़िया खेतों में परेशान करती थी, ओके, फसलों को बर्बाद करती थी। इस सारा होने के बाद में चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने वो चिड़ियों को मारने का हुक्म दे दिया। जिसको चिड़िया दिखी वो उसको मारेगा, और जो जितने ज़्यादा चिड़िया मारेगा उसको उतना इनाम मिलेगा। बस फिर क्या, लोग निकल पड़े चिड़ियों को मारने। जो जहाँ दिखेगा, जितनी चिड़िया दिखेगा वो मारता है। उसको एक मालाओं में पुरोया जाता, चिड़ियों के जो डेड बॉडीज है उसकी मालाएं बनाई जाती, गवर्नमेंट्स को दी जाती, तो गवर्नमेंट से इनाम देते। लोग बहुत खुश थे, ये हम लोग चिड़िया मार रहे हैं। एक ही लिविंग क्रिएचर्स, चाइनीज का पॉपुलेशन देखो, मतलब उनको कुछ काम ही नहीं बचा था 6-7 महीने, बस सिर्फ चिड़िया मारते थे, सिर्फ चिड़िया मारते थे बस। और गवर्नमेंट्स को देना, उससे इनाम देना, सब लोग खुश हो गए थे, वाह हमारी फसल अगले साल कितनी आएगी, कितनी आएगी, हम लोग कितना खुश हो गए। हुआ भी वैसे ही, जिस साल उन्होंने चिड़िया मारे उसके अगले साल अच्छी खासी फसल हुई, अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा नहीं। सब लोग खुश थे, वाह हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया, हम लोगों ने कितना अच्छा काम किया, कितना बड़ा काम किया। ओके, अभी नेक्स्ट साल की बात थी, अगले साल की बात थी। अगले साल क्या हो गया, जब फसल आई तो फसल पे जो इंसेक्ट्स होते थे, इंसेक्ट्स का अटैक होने लगा। छोटे 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 लिविंग क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स, मक्खियाँ, जो सारी जो चीज़ें होती थी वो फसल पे अटैक करने लगे। अभी फसल पे अटैक करने के लिए फार्मर सारी चीज़ें अप्लाई कर ले उसने, लेकिन वो इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मर ही नहीं रहे थे, वो फसल को बर्बाद करते जा रहे थे, बर्बाद। एक वक्त ऐसा आ गया कि चाइना की सारी फसलें बर्बाद हो जा रही थी, सारी फसलें। लोग भूखमरी से परेशान थे, भूखमरी से उनकी हालत तो ये थी कि उन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, कई कई दिन वो लोग भूखे रहते थे। सब लोग परेशान हो गए, हम लोग फसल तो बो रहे हैं, हम लोग पास पानी है, हम अच्छी देखभाल कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारी फसल ग्रो क्यों नहीं हो रही, हमारी फसल ग्रो क्यों नहीं हो रही। तो जब गवर्नमेंट ने रिसर्च की तब पता चला कि ये जो सारे जो कीड़े, जो मक्खियाँ, जो सारी चीजें थी, इनको खाने वाली चिड़िया को हम लोगों ने पहले ही मार दिया। चिड़िया खत्म तो ये जो कीड़े थे, मूलियाँ थे, ये जो सारी चीजें खाएगा कौन, उनको खाने वाले वही तो थे। फसल को नुकसान करते थे, थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, फसल को इन इंसेक्ट से क्या करते थे, बचाते थे। फसल तो बर्बाद थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन वो चिड़िया क्या करते थे, इस इंसेक्ट्स को खाकर अपना पेट भरते थे और फसल को भी बचाते थे। फिर लोगों को समझ में आया कि उन लोगों ने कितनी गलती कर दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अभी चाइना में के हिस्ट्री में सबसे बड़ा आकार पड़ा था। चाइना की पूरी हिस्ट्री ले लो आप, चाइना का कल्चर बहुत पुराना है, 8 से 10,000 साल पुराना उनका कल्चर है, लेकिन पूरे कल्चर में सबसे बड़ी भूखमरी तब थी, क्योंकि पूरे जो कंट्री में है अनाज बचा ही नहीं था, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। सब लोग परेशान थे, भूखमरी, गवर्नमेंट परेशान, गवर्नमेंट कितने लोगों को खाना देगी, चाइना बहुत बड़ी कंट्री है, उसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, किस किस को खाना सप्लाई करेगी, क्या क्या करेगी। आखिर वहाँ की सरकार ने अपने घुटने टेक दिए, उसने भी कहा कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब लोगों को अपनी गलती पे पछतावा होने लगा। उनको सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया दिख रही थी, लेकिन उस छोटी सी चिड़िया ने पूरे देश को भूखा रख दिया, पूरे देश को भूखा रख दिया। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं, लोग भूखमरी से मर रहे थे, छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी चिड़िया ने हम लोगों को कहां से
तो हमारे इकोसिस्टम में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया ले लो या माइक्रोब्स ले लो, कोई भी छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राइजोबियम, राइजोबियम नहीं है, एक छोटा सा लिविंग क्रिएचर है, एक छोटा सा कीटाणु है, एक बैक्टीरिया है। अगर वो नहीं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस नहीं, तो प्लांट्स ग्रो हो गए क्या, ग्रो भी हो गए तो उससे फसल अच्छी आएगी क्या। तो उस चिड़िया का इंपॉर्टेंस तब उन लोगों को पता चला कि वो चिड़िया इन लोगों के लिए कितनी अहम थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी। फिर क्या, एक बार वक्त हाथ से निकल के जाने के बाद लोग भूखमरी से परेशान हो रहे थे। बस फिर एक ही रास्ता था, जो लिविंग क्रिएचर्स उनको मिलता रहा वो खाते गए और सरवाइव होते रहे। स्लोली 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 एक ऐसी कंडीशन आ गई कि मीट खाना, हर एनिमल खाना वो उनके कल्चर में ही आ गया। ओके, उन लोगों ने जानबूझ के वो कल्चर नहीं अपनाया। हम लोग चाइनीज को ब्लेम करते हैं कि अरे कैसे लोग ये कुछ भी खाते हैं, उन लोगों के लिए खाने की सेंस है या नहीं है, कोई भी एनिमल्स क्यों खाते, इसके पीछे का रीजन नहीं था। एक वक्त था उनको खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं, उन लोगों ने उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ लिया, लिविंग क्रिएचर। जो लिविंग क्रिएचर्स दिख रहा था वो लोग खा रहे थे, सर्वाइव हो रहे थे। बिकॉज सर्वाइविंग इम्पोर्टेंट, हर ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट, तो वो सर्वाइव हो रहे थे, खाना खा जो मिला वो खा रहे थे। तो यही कल्चर उन लोगों के लाइफ में बच गया, अभी भी वो यही फॉलो कर रहे हैं। बट नाउअडेज, तब भूखमरी थी, अकाल था, लेकिन अब चाइना की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। उसके बाद में जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स है वो भी अच्छा खासा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन एक बार जो इंसान को कुछ चीज़ें की लत लग जाती है वो नहीं छूटती, तो चाइनीज को भी ये सारी चीज़ें खाने की लत लग गई। सो अभी जो कोरोना वायरस आया वो एक, हम लोग बोलेंगे कि उसकी अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज है। कोई बोल रहे हैं लैबोरेटरी से लीक हो गया, कोई बोलते हैं कि थ्रू द बैट हिसाब में आया। ओके, हम लोगों को वो फंदे में नहीं पड़ना है, लेकिन देखो एक छोटी सी चिड़िया ने पूरे देश का कल्चर चेंज करके रख दिया। आज वो लोग क्या क्या खाने को नहीं खाने को मिलते। चाइना में डॉग फेस्टिवल सेलिब्रेट, डॉग फेस्टिवल मतलब डॉग को हार माला पहना कर डेकोरेट करना नहीं, डॉग का मीट लोग खाते हैं। वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो वो डॉग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वहाँ पे स्नेक्स खाए जाते हैं, हर वो क्या ब्रीड का स्नेक्स, हर अलग अलग स्नेक्स वहाँ पे मिलते हैं। ओके, छोटी सी चिड़िया की वजह से। तो यही इंपॉर्टेंस होता है हमारे इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में चाहे वो क्रिएचर छोटा हो या बड़ा हो, हर उस क्रिएचर की प्लेस है हमारे इकोसिस्टम में। वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए यूजफुल होता है, हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं कि जो चिड़िया जो है, अभी नादर में चिड़िया दिखाई दे रहा है, चिड़िया, क्रो, ओके, ये कौवा, ये अभी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बिकॉज ऑफ मोबाइल के जो टावर्स होते हैं उसके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, ओके, पोल्यूशन, वो भी हम लोगों के लिए यूजफुल है। चिड़िया चाहे कौवा हो गया, क्रो हो गया, वो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस है। तो अभी हम लोगों के पास वक्त है, अभी भी हम लोग कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो हम लोगों को समझना होगा कि क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या हार्मफुल है। हार्मफुल है इसका मतलब हम लोग उसको पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर क्या होता है प्लेग, कॉलरा, इसके जो माइक्रोब्स से पूरी तरीके से हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर ही नहीं बचती। वैक्सीन्स, हार्मफुल बैक्टीरिया भी हम लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं। कब? जब हम लोग उसका स्पेसिफिक अमाउंट में यूज करते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया ने क्या, वैक्सीन यानी क्या, यूजफुल माइक्रोब्स में वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है। वैक्सीनेशन होना यानी एग्जैक्टली क्या होना, डेड और वीक जर्म्स, हार्मफुल बैक्टीरियाज ही होते हैं। क्या होते हैं वो? हार्मफुल बैक्टीरियाज ही होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? डेड और वीक होते हैं।
और ये जब डेड और वीक माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर क्या करती है, इंक्रीज करती है। और रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज होने यानी क्या होगा, हम लोग उस बीमारी से बचने की ताकत हमारे बॉडी में हम लोग बना रहे हैं। ओके, सो मेरा जो स्टोरी बोलने का जो मेन इंटेंशन था वो था माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स, मतलब हर लिविंग क्रिएचर्स मैटर करता है हमारे इकोसिस्टम में, हर लिविंग क्रिएचर्स। ओके, और एक इंसिडेंट है, 5 साल पहले एक ऑयल का बहुत बड़ा जहाज था, जहाज डूब गया तो उसका ऑयल लीकेज होने लगा। ओके, अभी वो जहाज थोड़े ना एक अपने घर के इतना या बिल्डिंग के इतना, बहुत बड़ी शिप थी। ओके, इतनी बड़ी शिप थी कि वो कोस्टल एरियाज की सारी फिशेस मर गई, सारी फिशेस जितने भी पूरी एक्वेटिक लाइफ है डिस्ट्रॉय हो गई। तो एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता था, वो बैक्टीरिया उस पानी में छोड़ा गया और उस बैक्टीरिया ने उस ऑयल को पीकर, ओके, वो स्लोली डिस्ट्रॉय करता गया और तकरीबन 2 से 3 महीने लगे उस ऑयल को पूरी तरीके से हटाने में, और तब तक पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो सोचो उस बैक्टीरिया ने वहां के उतने इकोसिस्टम को बचाया, वक्त लगा था, 2 से 3 महीने लगे थे। ओके, तो वो एक जो स्मॉल बैक्टीरिया था उसने वो पूरे ऑयल को डिकम्पोज कर दिया। सो डिकम्पोजिशन भी हमारे इकोसिस्टम में जरूरी है। अगर हम ये चीजें एज इट इज रखते जाएंगे तो ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है। ओके, सो आई होप मैंने जो आपको इम्पोर्टेंस बताया लिविंग क्रिएचर्स का, हर लिविंग क्रिएचर्स का हमारे एटमॉस्फेयर में, आप लोगों को समझ में आया। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ओके, आई विल बी देयर इन नेक्स्ट वीडियो with the same revision point of microbes, friends and foam. That's it for today. Thank you and have a nice day.